ठीक है। मैटलैब में अपना बिल्ट इन कमांड है रेडियंट डिग्रीज। तो 1 रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो इट इज़ पाई बाय 180 by pi, which is the same. So 57 point this. So we want the first joint to rotate this way. Okay. We want the first joint to rotate by how many degrees? These many degrees. And we want to start from 0. So our initial time and everything else is 0. Okay. मैं लिख देता हूँ S naught S dot at time is 0, initial velocity, and S dot at time TF is 0. Similarly, S double dot at time 0 and S double dot at time 1, they are also 0. इसका मतलब क्या हो गया? Initial and final velocities are 0. और इसका क्या मतलब हो गया? Initial and final accelerations are 0. Okay, now look at that. Look at this equation now. We are going to implement it. So first construct your A matrix. So A matrix is 0. ठीक है, और आखिरी कॉलम जो है वो 1 है, this one. And then T to the 5. थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं. T to the 4. T to the 3. T to the 2. Power 2. T to the power 1, and this is also 1. Okay, so and third row is 0, 0, 0, and how many zeros? 4 zeros, yes, 1 0. Okay, and then this one is third row is 5 multiply multiplication for डालना है, ठीक है, 5t to the 4. The second one is 4t to the 3. ठीक है, तो थोड़ा और भी दूर कर लेते हैं ताकि रीडेबल हो. 3t to the 2. And 2t होगा ये 2t. Okay, and 1 and 0. ये हो गया ये fourth row, and then fifth row is 0, 0, 0, 2, 0, 0. ठीक है, इसको रीडेबल बनाते हैं टेप के साथ. और फिर आखिरी रो जो है वो है, सॉरी, आखिरी रो है 20 multiplied by t cube, t to the 3. Okay, and 12 multiplied by t squared. Square के लिए ये निशान नोट कर लें. This 6 multiplied by t, and sorry, and oopsie, space and then tab, and 2 and 0, 0. इधर bracket बंद and फिर semicolon.
और राइट साइड पे आपके हैं जो जो आपने कोएफिशिएंट्स फाइंड करने, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। These are what we have to, no sorry, B हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं इनिशियल कंडीशंस, जो इनिशियल कंडीशन। So we have S0 and ST, yeah, SF, S dot 0 at time t is equal to 0, S dot F, इसको सिर्फ DF कहते हैं, S dot 0, S dot F, S double dot at time 0 and S double dot at time t, no, at time F, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि भाई इनिशियल टाइम इज 0 एंड फाइनल टाइम इज t, तो हम इसको कह देते हैं जी t is equal to 1, that's what we have been told, so everywhere t will be 1। तो अब अगर आप इसको evaluate करें तो you can see your t matrix, you can see your A matrix, this is your A matrix, ठीक है। and if you look at, अच्छा इधर भी initial conditions देंगे, तो पहले वैल्यूज दें और फिर इवेल्युएट करें। एस नॉट 0 से हम स्टार्ट करें, एस एफ फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन मैंने आपको इधर कहा है कि इट्स 1 रेडियन, ठीक है। तो दिस इज 1 रेडियन, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन भी 0। अब बी को एवेल्युएट कर लें तो आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। बी को एवेल्युएट करें तो यू गेट बी, ठीक है। अब आप क्या करें, ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स जो आपके पास हैं, ए इज ओवर दिस, उसको कंप्यूट कर लें तो यू विल कम अप with this is your A, ठीक है। तो अब आप you will get your polynomial because you have all the coefficients, ठीक है। तो polynomial positions निकालने के लिए now you have the coefficients, and if you look here, so मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, या आप खुद या कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है। पहला A जो है, the first element in A, उसको हम कैपिटल A कहते हैं, लोग उसको हम कैपिटल A कहते हैं, ये इसको हमने स्मॉल a वेक्टर कहा था, इसका फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल A है, सेकंड एलिमेंट कैपिटल B, कैपिटल B है वो उठा लें इससे, थर्ड एलिमेंट कैपिटल C, फोर्थ एलिमेंट कैपिटल D, फिफ्थ एलिमेंट दिस, और सिक्स्थ एलिमेंट दिस, ठीक है, A to F। Now you have that. Now if you want to make your S, so let's say we want to confirm that what is S at time 0, so पहले तो A small t0 put कर लें, and let's see what is S at that, so we'll do A multiplied by A into t to the 5, so A into t to the 5 plus B into t to the 4,
c into t to the 3 plus d into t to the 2 plus e into t plus f. ठीक है. Now we want to see कि हमारे पास इनिशियल टाइम क्या पोजीशन क्या आती है. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द इनिशियल पोजीशन. फरहद, कोएफिशिएंट्स मेरे पास जी अभी सर। आ गए हैं. मैं कोएफिशिएंट्स फाइंड करता हूँ. वो ये है जी, ये कोएफिशिएंट्स यस सर। मेरा ए है, बी, सी, डी, ई, एफ. अब आप बताएं एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब तो हम इसमें वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं. वी हैव द कोएफिशिएंट. बस सिर्फ आप टाइम की वैल्यू दें यस और पोजीशन की वैल्यू, you will get the values of the position. So at time t is equal to 0, यस what सर। should be the position? सर 0 0। 0 0 नहीं, सिर्फ 0, एक ही जॉइंट है. वो तो हमने इसको कहा था ना कि भाई टाइम t is equal to पोजीशन 0, विल बी उसी 0 के सर। मुनासिबत से हमारे कोएफिशिएंट्स निकल आए हैं ना. लेकिन हम वेरीफाई करना चाहते हैं. फ्यू वेरीफाई सर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या. तो अब अगर सर आप इसके वैल्यूज अगर हम पुट कर लेंगे तो इससे आएगा आंसर। वैल्यूज पुट हो गई ना, एक ही वैल्यू पुट. लेकिन ये तो हमें फाइंड करने से पहले पता था कि t इज इक्वल टू 0, पोजीशन इज 0. इट वाज इनिशियल कंडीशन. लेकिन हम सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारे कोएफिशिएंट्स ठीक आए हैं कि नहीं आए. सो दिस इज अ वन वे टू कंफर्म. अब मुझे कौन बताएगा फाइनल क्या होगा. फाइनल के लिए सर वैल्यूज पुट करेंगे फिर हाँ, तो फाइनल टाइम हमने फाइनल टाइम वाज व्हाट, 1 सेकंड. अब फिर से एस फाइंड करें. तो फाइनल टाइम इज 1. दिस इज रेडियंस. वो हमने कहा था कि भाई फाइनल पोजीशन इज 1 रेडियंस. तो ठीक है. अब 0 और 1 सेकंड के बीच में लेट से आपका t 0.5 है. तो मुझे ये बता देगा कि t 0.5 पे पोजीशन क्या होगी. 0.5 रेडियंस. आधे टाइम में मैं आधे उस पे पहुंच चुका हूँ. 57 डिग्रीज अगर मैंने 1 सेकंड में करनी थी तो 0.5 सेकंड के बाद मैं बिल्कुल हाफ वे हूँ, 0.5 रेडियंस पे हूँ. which is what makes sense. ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 50 पॉइंट आए, 50 पॉइंट्स, तो फिर आप टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 पॉइंट्स के लिए करना है. इन अदर वर्ड्स, ये जो हम इधर कर रहे थे, ये हमने 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 50 पॉइंट्स लाने हैं. 50 पॉइंट्स. तो 50 पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि भाई 0 से शुरू करो और 1 को 50 पे डिवाइड करो, या 1 से शुरू करो, नहीं सॉरी 0 से शुरू करो, बीच में स्टेप लो 1/50, और आखिर में आपके पास 1 सेकंड तक. ठीक है. तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास 50 वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है. अगर आप छोटे स्मॉल टी को आप देखें तो ये अच्छा 51 वैल्यूज हैं. ठीक है, हमने 0 से शुरू किया, लेकिन ये आपके टी है. ठीक है. लेट्स कॉल दिस टी वेक्टर. टी वेक्टर, टाइम वेक्टर जिसमें 50 वैल्यूज हैं, 51 वैल्यूज ऑफ टाइम बिटवीन 0 एंड 1 सेकंड. ये मैटलैब का जनरल फंक्शन है. अगर आपको कोई कहता है कि 1 to 10 मेरे लिए एक स्टेप में डिवाइड करो, ठीक है, लेट्स से x है, 1 से शुरू करते हैं,
और बीच में स्टेप लेते हैं 5 और 10 तक जाते हैं, तो x में क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 5 इज द स्टेप साइज, 1 से शुरू करना है और 10 आखिरी वैल्यू है। तो 1 फिर 5 का गैप फिर सेकंड, उसके बाद फिर 10 के बाद एक और वैल्यू इसमें नहीं आती। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रेंज इन मैटलैब। अब आप मुझे कौन बताएगा y इज इक्वल टू 10, स्टेप साइज इज 2, फाइनल इज 100। y के अंदर क्या क्या आएगा? लेट्स मैं 90 कर दूं, चलो 90 कर दूं। y के अंदर ये माइक किसका खराब है? ये म्यूट म्यूट सादात आपका माइक। 13 अच्छा, इसमें क्या आएगा y के अंदर? सर 13 13 किधर से आ गया? 13 90 से स्टार्ट कर रहे हैं। 92, 94, 96, 98. वेरी गुड। 90 पहली वैल्यू होगी, 2 के गैप से दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, 2 के गैप से और आखिर में ये। तो ये रेंज इस तरह क्रिएट करते हैं मैटलैब में, ठीक है। अगर आप रेंज नहीं देते और बीच में वन गैप देते तो फिर ये बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 90, 91, 92, 90। तो दिस इज अ स्टेप साइज, दिस इज इनिशियल वैल्यू इन द वेक्टर, दिस इज द फाइनल वैल्यू इन द वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज हाउ, ये मैंने इधर क्या किया है, मैंने इधर 0 पॉइंट, अच्छा नहीं ये तो पुराना कोड है, हाँ नहीं, ये मैंने बीच में स्टेप 1/50 लिया है ताकि 0 से लेके 1/50 के स्टेप साइज में मैं 1 तक पहुंचूं। तो 1/50, 0, 1/50, 2/50, 3/50, 4/50 एंड सो ऑन, 50/51 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप टी वेक्टर को देख लें तो टी वेक्टर में आपके पास ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 0, 0.02, 0.04, 0.06। इसका मतलब ये था कि 1/50 की जगह डायरेक्ट भी आप स्टेप साइज दे सकते थे, इट वाज द सेम थिंग, 0, 0.02, 0.04, 0.06 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे वेक्टर में हर टी के हर वैल्यू पे हमारे पास एस की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाए। अब क्या हम इस तरह एक एक वैल्यू पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0, फिर ये कंप्यूट करेंगे, फिर t इज इक्वल टू 1, फिर ये कंप्यूट करेंगे, फिर t इज इक्वल टू 0.02। तो हम एक रेंज के लिए एक रेंज, ठीक है, फाइंड करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला वही है, लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि t एक वेक्टर है, t में अभी 51 वैल्यूज हैं, तो इधर डॉट डालेंगे। इस डॉट का मतलब ये होगा कि t के हर एलिमेंट के साथ t के हर एलिमेंट को t⁵ कर लो। ये पहले करने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि हम t स्केलर देते थे, ये t स्केलर था तो हमने इधर कोई डॉट नहीं डाला। डॉट ऑपरेटर को एलिमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं कि t वेक्टर के हर एलिमेंट पे ये ऑपरेशन करो। तो अब s जो निकलेगा उसमें कितने वैल्यूज होंगे? एनीवन? जो अभी s में कंप्यूट करने जा रहा हूं वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? और वेक्टर होगा तो उसमें कितने वैल्यूज होंगे? मुसव्वर ज़ेब, मुसव्वर, कैन यू हियर मी? अब्बास यूसुफ, अब्बास यूसुफ, कैन यू हियर मी? यस सर। ये बताएं एस जो अभी मैं कंप्यूट करने जा रहा हूँ इसमें कितनी वैल्यूज होंगी? सर 6 वैल्यूज और वेक्टर होगा सर। 6 वैल्यूज क्यों?
सर एक वैल्यू होगी सर। सर 51। 51 वैल्यूज होंगी। इधर क्या सर भी एक दिया वैल्यू होगी। कि टी के हर वैल्यू के अगेंस्ट इसकी एक वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो सर अब ये आप आखिरी टी किस को निकाला है आपने? आखिरी का पावर नहीं है ना, उसका तो पावर नहीं ले रहे ना। ये तो जब पावर ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि भाई अगर आप ये डॉट नहीं देंगे तो मैटलैब कहेगा कि अच्छा आप वेक्टर का स्क्वायर कैसे ले रहे हैं। तो हमें पता है कि वेक्टर का स्क्वायर लेना मीन उसके हर एलिमेंट का स्क्वायर लेना, तो वो इस डॉट के थ्रू हमने बता दिया। तो अभी अगर आप एस को इवेल्युएट कर लें तो एस के अंदर, अब मैं आपको एस दिखा देता हूँ, ये एस है। तो टी को देखें तो जब टी 0 था तो एस की वैल्यू भी 0 थी। जब टी ये था तो एस की वैल्यू बहुत कम थी। जब टी थोड़ा 0.04, क्योंकि इतने कम टाइम में तो उसने बहुत स्मॉल चेंज आई होगी ना रेडियंस में या डिग्रीज में। ठीक है, और जब टी लेट्स से अपने हाफ तक पहुंचा, 0.25 तक, 0.24 तक, लेट्स से 13 नंबर एलिमेंट, तो उस वक्त ये इसने कितने डिग्री, ये रेडियन 0.07। ठीक, तो 25, अच्छा इसमें कितने हैं, हाँ जी 25 पे जब अपने हाफ को पहुंचा या 26 वैल्यू, तो उधर 26 पे एस की वैल्यू क्या है, 0.5। तो ये हमने वेरीफाई किया था जब टी हमने 0.5 पुट किया। टी जब हमने इधर 0.5 पुट किया था, वो शायद मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो एस 0.5 पे आप कर लें, फिर टी 0.5 पुट कर लें और एस फाइंड कर दें। इसको एस वेक्टर कह रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसको हमने स्केलर, ठीक, इसको वैल्यूएट कर दें तो एस की वैल्यू आती है 0.5। तो इसका मतलब है जब टी वेक्टर था, जब टी 0.5 था तो एस की एस तो खैर मैंने हटा ही दिया, तो इसको वैल्यूएट कर दें। अच्छा ये टी नहीं है, अच्छा आई एम सॉरी, ये टी तो स्केलर है ना, तो ये टी वेक्टर वेक्टर टी डालना होगा। ये इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, क्योंकि डॉट ऑपरेटर आप तब डालते हैं जब आप वेक्टर के एलिमेंट्स का पावर ले रहे हैं। तो अब अगर आप ये कंप्यूट कर लें तो दिस इज योर टी एंड दिस इज योर, अच्छा ये एस मैंने खोला हुआ है, एस वेक्टर, अब हमने इसको कहा हुआ है दिस इज योर एस वेक्टर, दिस वाज योर टी वेक्टर। अब अगर आप चाहते हैं कि हर टी के एलिमेंट के अगेंस्ट एस की वैल्यू प्लॉट हो, तो एस वेक्टर, तो टी के हर वैल्यू के अगेंस्ट इसकी जो वैल्यू है वो आपको ग्राफिकली नजर आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ तो जाहिर बात है तब बनाते हैं जब एक्स एक्सिस भी वेक्टर हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज हो, और वाई भी एक्सिस भी वेक्टर हो, तो ये आपके पास प्लॉट आता है। ये वही चीज़ है जो हमने किताब में देखी है, दिस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये देखें, मैं आपको अपना प्लॉट बता देता हूँ, सॉरी, ये प्लॉट, सिर्फ फर्क ये है वो भी 0 से 1 तक गए, ठीक है, उसने इसको एस का हुआ है। तो हम अपने प्लॉट को थोड़ा एडिट कर लेंगे, प्लॉट टूल्स में जाके हम कहेंगे वाई एक्सिस को एस कह लो, वाई एक्सिस को क्या कर लो, इसको टाइटल दो, वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो वाई एक्सिस को एस कह लो और एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस कह लो, ठीक है, टी कैपिटल का टाइम टी, और एस क्या है, ये क्या है, ये
जॉइंट पोजीशंस, इसको हमने एस का हुआ, और ग्रिड ऑन है तो आप भी ग्रिड ऑन कर लें, ग्रिड मोर प्रॉपर्टीज। ओके इसको, हाँ जी, ये अगर आप कर लें, सिलेक्ट कर लें, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो पुट डॉट्स हियर। प्लॉट टाइप लाइन है, हाँ जी लाइन ठीक है। लाइन की विड्थ, विड्थ क्या है, थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं तो 1 कर लें, 2 कर लें, ठीक है। कलर चेंज करना चाहते हैं ब्लैक कर लें, ठीक है। और वो ग्रिड कैसे आएगा, ग्रिड ऑन, शो लेजेंड फिलहाल नहीं, हाँ ग्रिड, तो ग्रिड भी आ गया। तो नाउ इफ यू क्लोज योर प्लॉट टूल्स, हाइड योर प्लॉट टूल्स, तो ये आपका प्लॉट आ गया, ठीक है। बल्कि बेस्ट होता है इसको हमने टाइटल भी दिया होता, टाइटल ऑफ होल प्लॉट, ये क्या है, वन स्मूथ वन डायमेंशनल ट्रैजेक्टरी, तो अब इसको आप हाइड करें, तो दिस इज योर प्लॉट। अब आप चाहते हैं कि आप अपने रिपोर्ट में डालें, तो फाइल या एडिट, कॉपी फिगर, ठीक है, कॉपी, और अगर लेट से आपका रिपोर्ट है या जो भी है तो पेस्ट कर रहा हूँ। If it takes time, it will come. अच्छा, हम्म, नहीं आ रहा, लेट्स से किसी और तरह से इसको कॉपी करेंगे। फाइल, इसको सेव एज कर लेते, और सेव एज में फिगर के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। लेट्स से मैं फिगर के तौर पे भी सेव करूँ इधर, वन डायमेंशनल या लैब ट्रेजेक्ट्री जन फिगर 1, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ लैब्स में, दिस, ये एक फॉर्मेट में सेव हो गया। अगर आप दूसरे फॉर्मेट में सेव करते हैं, लेट्स से, या हाँ जी, चलें, मैं तो स्क्रीनशॉट वाला भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इफ़ यू हैव इट, यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। सो दिस इज अनदर अनदर वे, और इसको अगर हम इसमें डाल दें, सो नाउ आई थिंक इट शुड कम, नाउ इट इज कम, ठीक है। तो इसका कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्शन में लिखेंगे कि भाई वन डायमेंशन ट्रेजेक्ट्री या ट्रेजेक्ट्री of one joint from initial joint position 0 radians to final 1 radian in from initial joint position 0 at time t is equal to 0 and final 1 radian at time tf is equal to 1, ठीक है। तो ये रेडियंस लिखना ज़रूरी है, ये हम प्लॉट में भी लिख सकते थे, ये कहानी लिखने की ज़रूरत ना होती, तो मैटलैब में जाके प्लॉट को मॉडिफाई कर लें। 12 लेनी में प्लॉट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भाई हाउ अबाउट वेलोसिटीज, वेलोसिटी का प्लॉट कैसे होगा। तो मैं अभी आपको ये टास्क में डाल देता हूँ कि स्क्रिप्ट आई एम गोइंग टू शेयर, तो आपके पास
स्क्रिप्ट मैं आपको देने लगा हूँ। ओके, प्लॉट द पोजीशन velocity and acceleration for the following trajectory generation problem. ये मैं इधर वो लाता हूँ लेक्चर्स का. So if we go to the lecture, industrial robotics, इसमें trajectory generation 2. ये नहीं, trajectory generation 1. ठीक है, तो ये आपने लेना है. ये आपकी इनिशियल है, क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल. तो 6 ट्रेजेक्टरीज आपके पास आएंगी इस तरह. हमने उधर एक जॉइंट के लिए किया, आप 6 जॉइंट के लिए करेंगे. तो लेट से आपको क्यू इनिशियल ये गिवन है. ठीक है, हाँ, क्यू आई, ये 6 जॉइंट्स है. रिमेंबर, ये है डिग्रीज में, आप इसको रेडियन में खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, और फाइनल है क्यू फाइनल. तो ये है. ठीक है, और इन initial velocities and accelerations are all 0. ठीक है, तो मैं लेट्स से मैं जॉइंट नंबर 3 के लिए करना चाहता हूँ. तो लेट्स सी हाउ आई डू इट. तो ये उठा के मैटलैब में डाल देंगे स्क्रिप्ट में. तो ये आपका टास्क आ जाएगा. तो ये क्यू इनिशियल आया, अगर सही ना आए तो टाइप कर लें. खैर है, जो जो चीज़ें रेड है इसका मतलब है कि इसको पसंद नहीं है. तो ये हो गई जी, ये आपका इधर ट्रांसपोज कर लें. और क्यू फाइनल भी वहाँ से ले आए. ठीक है, क्यू फाइनल, और ये आपका ये हो जाएगा माइनस. ठीक है, इसको भी ट्रांसपोज कर लें. और क्यू आई को रिप्लेस करें, ये डिग्रीज में है तो हम इसको रेडियंस में डाल दें, या चलो डिग्रीज में कंप्यूट हो जाए. ठीक है, तो मैं जॉइंट 4 उठाता हूँ, जॉइंट या जॉइंट 3 उठाता हूँ. ये तो कैसे उठाऊंगा, क्यू आई से क्यू 3 इसको कह लें, क्यू आई वैक्टर से उठा लें 1 2 3, और क्यू एफ, ये क्यू 3 इनिशियल हो जाएगा जॉइंट 3 का, क्यू 3 का फाइनल हो जाएगा. वो क्यू एफ का 3 उठा लें. तो क्यू एफ, और इसको जरा एवेल्युएट करें कि पता चले कि हमारे पास क्या आता है. अच्छा, कोई गड़बड़ है. क्यू एफ इसको पसंद नहीं है, उसमें शायद कुछ रेड था. हाँ, क्यू एफ, Q, the input character is not valid in MATLAB. कौन सा input character? QI ठीक है, और इधर कुछ इसको कैरेक्टर नजर आ रहा है, हमें तो नहीं नजर आ रहा है. चलें खैर, हम QF इसको फिर से एवेल्युएट करते हैं. ठीक है, अभी ठीक हो गया.
और तो थर्ड वन उठा लें, तो लेट से ये हमें उठाता है हमारे लिए -31.8, तो यस उठा लिया। और फोर्थ वन उठा लें, ठीक है। अब इसके लिए आपने Q3 इनिशियल भी गिवन है, Q3 फाइनल भी गिवन है, तो आपने ये उठाना है, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ स्पेसिफाई नहीं की कि भाई ये कितने टाइम में अंदर पहुंचेगा। ये आप आर्म को इनिशियल टाइम T0 is 0 start और फाइनल टाइम is 2 seconds। नहीं, 2 मेरे लेक्चर में क्या अच्छा, ये तो 120 पॉइंट्स है ना उसमें, लेट से 2 सेकंड कर लें, खैर 2 सेकंड में आराम से पहुंच जाएगा। तो इसमें 2 सेकंड फाइनल टाइम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर ये वाला टास्क उठाऊंगा यहाँ से और मेरे पास ए यहाँ कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो इट्स जस्ट दैट। लेकिन अब हमारे पास T2 होगा फाइनल टाइम, ये वेक्टर छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन अब हमारे पास Q3 इनिशियल आ जाएगा, Q3 आए, और फाइनल पोजीशन हमारे पास आ जाएगा Q3 और ये भी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है, और कोएफिशिएंट्स फाइंड कर दें। तो लेट्स इवैल्यूएट दिस सेक्शन। हाँ जी, तो selected section कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बिकॉज इट कंटेन्स एन इनवैलिड स्टेटमेंट। इसको किस स्टेटमेंट से मसला है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से यहाँ तक इवैल्यूएट कर लें, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक इवैल्यूएट कर लें, फिर ये Q3 आई, ठीक है, इसको इवैल्यूएट कर लें, इसको इवैल्यूएट कर लें एंड इसको कंप्यूट कर लें। तो इसको मसला क्या था फिर, कोई भी मसला नहीं था, तो सारे का सारा सेक्शन रन क्यों नहीं हुआ। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। Selected section cannot be available because it contains what? बीच में से लाइन निकाल लें। अब रन करें इसको। हाँ हाँ, माशाल्लाह, इसमें किधर गड़बड़ हो सकती है, इधर कुछ जन्नात बैठे हुए हैं जो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको रन कर लें, इधर नहीं था। अब 112 इसको क्यों डिफरेंट कलर दिया हुआ है, इधर कोई ना, QF चलें, सेक्शन नहीं एलिमिनेट, वो एवेल्युएट हो रहा है, लेकिन हम अलग अलग लाइंस रन हो रहे हैं, विच इज द सेम थिंग, ठीक है। अब इस पे टाइम ज़ाया हो रहा है। इफ आई सेलेक्ट द सेम सेक्शन ओवरऑल एंड आई एवेल्युएट इट, तो ये हो जाता है, ठीक है।